Okay then. Good morning, everyone. Today we are going to continue our chapter 6, and we were doing exercise 6.3, where we were using the criteria of congruency. You all have told me already that there are three criteria of similarity. Similarity criteria we have already done. They are angle, 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 or two angles also we can say. Second one was side, 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 where we are saying that the three sides of the two triangles are similar, right? And the third one is your side angle side, where we say that the two sides will be proportional, and one of the angle which is coming in between those two sides which are proportional, that angle is equal. In that case, we will say that the triangles are similar by side angle side. So now today we have to start with the 10th question of 6.3. Your 10th question is CD and GH are respectively the bisectors of angle ACB. You are given two triangles, and this is C, A, B, and here the triangle is E, G, and this is F, and bisectors of these two angles. ये दो angles के आपको bisectors given, and these bisectors are intersecting the opposite side at point D and H. Now you are given CD and GH are respectively the bisectors of angle ACB and EGH, such that D and H lie on the sides AB and FE of the given triangles. If triangle ABC, similar triangle FEG, triangle ABC is similar to triangle FEG. जब आपको ये सिमिलैरिटी दे देते हैं ना, इसका मतलब उन्होंने आपको बहुत सारी चीजें बता दी। 6 चीजें तो इन्होंने आपको बता दी कि एंगल ए एफ के इक्वल होगा, सारी साइड प्रोपोर्शनल में होगी, बी ई के इक्वल होगा, सी सारे एंगल इक्वल होंगे, साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी। यस, और गिवन में आपको क्या गिवन है? अगर मैं इन एंगल्स को 1 2 3 4 दे देती हूँ, दैट मींस आल्सो ऑल एंगल्स आर इक्वल, दैट एंगल 1 is equal to 2 and 3 is equal to 4. ठीक है। 4. Now we have to prove. First part is CD upon GH equal to AC upon FG. And second part is triangle DCB, similar triangle HGE. And the third part is triangle DCA, similar triangle HGF. ठीक है, let me see. हमें so we have to prove that CD upon GH is equal to AC upon FG. और ये दो साइड्स के रेशियोज हम कब इक्वल कह सकते हैं? जब आपके कौन से दो ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी प्रूव करनी पड़ेगी यहाँ पर फर्स्ट पार्ट के लिए? ADC triangle ADC and triangle EH, triangle GHE. ठीक है, आपको ये वाले, क्योंकि ये दो साइड्स हैं, इधर से ये दो साइड्स हैं, इनकी आपको प्रोपोर्शनैलिटी चाहिए, सो यू विल हैव टू शो द सिमिलैरिटी ऑफ दीज टू ट्रायंगल्स। हम साइड तो FG है। हाँ जी, हम साइड तो FG है। FG, CD upon GH, CD upon GH is equal to AC. मैंने फिर कुछ गड़बड़ की है क्या? ट्रायंगल दूसरा ACB, EGF, ACB. ओके, आपके पास CD, GH, CD and GH, AC upon FG. मैम E की जगह F आएगा, ट्रायंगल के नेम में ट्रायंगल GHF आएगा। यहाँ पर F है मैम? नहीं, आपने नीचे लिखा है ना कि दैट इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल GHE, वो E की जगह F आएगा, GHF आएगा प्रूफ में। हाँ, मैं वही कह रही हूँ, तो मेरी यहाँ पर फिगर में एरर है ना, यहाँ पर F है आप लोगों का। फिगर ठीक है, फिगर ठीक है मैम। GHF, हाँ आप ठीक है। अच्छा, ABC FEG, ठीक है, ओके। फिगर्स इसके अकॉर्डिंग फिगर्स ही ऐसे बनी हुई है। ओके, चलिए,
So we will have to take this triangle and from here I will have to take this triangle. ठीक है, GHF, this one and this one. ठीक है, तो बताओ फिर कैसे करें? आपके पास ये सिमिलैरिटी मैम हाँ जी, AC by GF अपॉन में AD by HF. AC अपॉन GF. हाँ तो क्या लिखूं CD इसको? AD अपॉन HF. कहाँ से लिख दूं इसको? ये कहाँ से आ गया? CD CD मैम अपॉन AD अपॉन HF. ओके, AD अपॉन HF लिख दिया, पर मैं ये लिखूं कहाँ से? ये कहाँ से आ गया रिजल्ट मेरे पास? मैम वो सिमिलर है ना मैम. कौन से सिमिलर है? आपके पास तो बड़ी वाली ट्राइंगल सिमिलर है ना, तो AD कहाँ से आ गया? फिर तो AB अपॉन मैम यहाँ HF पे ये आएगा कि AC इज इक्वल्स टू GF, कि हमें क्योंकि गिवन है कि सिमिलर है, तो अगर हम ऊपर तो given में सिमिलैरिटी देखें होती तो है हमारी तो ये इक्वेशन बेटा सिमिलैरिटी Proportional है ना वो तो, जरूरी थोड़ा ना उसको नहीं लेंथ मैम सेम है. एंगल इक्वल होंगे मैम. एंगल Yes, इक्वल होंगे मैम. वो yes, yes. A वाला एंगल और आप F साइड्स एंगल. नहीं ले सकते. अब पहले मेरी बात सुनो. हम अगर AD अपॉन HF तब कह सकते हैं अगर मुझे ये गिवन होता दैट D इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन एंड H इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन, तो हम साइड्स को प्रोपोर्शनल ले सकते थे. बट हमारे पास बड़ी ट्रायंगल्स सिमिलर हैं, तो सिमिलैरिटी के लिए अगर आप ये दो साइड्स ले रहे हो तो इधर से ये दो कंप्लीट साइड्स आपको लेनी पड़ेंगी. इनके पार्ट्स आप अपनी मर्जी से नहीं ले सकते क्योंकि बाइसेक्टर ये इसका गिवन है, एंगल का बाइसेक्टर मैम गिवन है, तो हम मीडियन एंगल होता वाले तो हो सकता था मैम. हाँ जी मीडियन क्या? होता तो हो सकता था ना मैम. हाँ मीडियन होता मीडियन तो हो होता तो सकता अगर AD CD तो. बिल्कुल, तो फिर कर तो सकते उसका हैं. half मैम ही दो हो जाता. एंगल्स हो गए, ये 1 और 4 इक्वल, A और F Yes. इक्वल. Yes, angle 1 is equal to angle 4. Here angle 1, this is angle 4. They are equal. Angle And A angle A is is equal to angle F. यहाँ से आपके पास Angle ये F. दोनों सिमिलर हैं, तो यहाँ पर A आगे आ रहा है, यहाँ F आगे आ रहा है. So angle A is equal to angle F. एंगल Left. ठीक है, because By these AA. are. What is the reason for this? CPFT. Yes, CPST is the reason. So now we are saying triangle ADC. This is similar triangle. मैम एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल कैसे आया? बाइसेक्टर हाँ, है इसलिए. बताओ भाई. हाँ जी, आपके पास मैम, क्योंकि इसका नहीं bisector मैम है. वो एक तो मैम वो सिमिलर है ना, तो वो इक्वल होंगे, तो उसका बाइसेक्टर है तो उसका मैम हाफ भी इक्वल होएगा. because angle C is equal to angle G implies half of angle C is equal to half of angle G. ठीक है, तो half of angle C we have taken angle 1 and half of G is angle 4, right? And A is equal to F, they are also equal by CPST. So triangle CPST. ADC is similar to triangle कौन सी GHF. है? GHF. नहीं, HGE HGE कहाँ से आ रही है? HGF GHF. HGF GHF. FHG. A आप F के इक्वल बोल रहे हो, तो A के सामने आपका F आएगा. D आपने C और फिर G ऊपर भी इक्वल चेंज बोले करो ना हैं. मैम. ऊपर भी ट्रायंगल आपने जिस हिसाब से लिख रखा है मैम, ऊपर ऊपर भी तो आप चेंज कुछ भी करो. लोगे. ऊपर हमें क्या पता था? यस, तब तक तो हमें पता ही नहीं Okay, कि वो ma'am. सिमिलर है या नहीं है. कर रहे हैं ना अभी, तो जब हमारे पार्ट्स इक्वल आए तो हम उसके अकॉर्डिंग फिर उनकी सिमिलैरिटी लिखेंगे. मैम बाय यहाँ पे आगे पीछे लिख रही तो गलत हो जाएगा मैम. देखो, आपको लिखना तो ऐसे ही चाहिए वैसे. कोई बाकी एग्जामिनर हम को मैम आपकी- बाहर ना ऊपर का ऊपर डायरेक्ट नीचे लिखा जाता है मैम. we will understand your feelings and we will give you the marks. Otherwise it must be written like this, because when you are given the Thank you, question, ma'am. हम ये कह रहे हैं कि अगर ये क्वेश्चन में गिवन है तो यहाँ से हमारी सारी चीजें हमें क्वेश्चन को देख के पता लग जाती है. इसको देख के ही तो हम कह रहे हैं कि A F के इक्वल है. हमने अपनी मर्जी से A को G के इक्वल नहीं बोला, क्योंकि ये हमें सीक्वेंस में गिवन होता है. कोरेस्पॉन्डिंग सिमिलैरिटी मतलब एंगल A F के ही इक्वल होगा, B E के इक्वल होगा, C G के इक्वल होगा. ठीक है, सो हमारे पास आपको पता है ना A के कोरेस्पॉन्डिंग F आया है, सो एट द प्लेस ऑफ A यू विल राइट F. आपने C, ये 1 एंगल और 4 इक्वल नहीं है, 1 C है 4 G है, तो जहां पर आपका C आ रहा है वहां G आ जाएगा. एंड द थर्ड यू विल राइट योरसेल्फ, जो बाकी थर्ड रह गया वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा. ठीक है, सो कोशिश करें कि आप इसको प्रॉपर ऑर्डर में लिखें. अब यहाँ से देखो, अगर आप यहाँ से देखो ना, ये बिल्कुल आपको सीक्वेंस में मिलेगा. CD अपॉन GH, CD अपॉन GH. ठीक है, अब इज इक्वल टू AC अपॉन FG, फर्स्ट एंड थर्ड. AC यहाँ से भी फर्स्ट एंड थर्ड FG.
by CP CPCT. CPST. ठीक है, corresponding parts of similar triangles. This Similar was the triangle. first. ये आपका first part हुआ. Now we are coming to the second part. We have to show that triangle DCB and HDE, they are similar. DCB and Angle 2 is equal to HDE. angle 4. मैम B और E इक्वल हो जाएंगे, 2 और 3 इक्वल हो जाएंगे. बिल्कुल ठीक है. B and E, they will be equal, and angle 2 and angle 3, they will be equal. So by angle similarity, we will have the two triangles to be similar, right? Third is DCA and HGF. This you have already done. ये आप ऑलरेडी कर चुके हो. ठीक है, तो आप यहाँ पे पहले थर्ड पार्ट लिख दोगे, फिर यहाँ पे फर्स्ट लिख दोगे, सेकेंड पार्ट आप इसको सिमिलरली प्रूव कर दोगे. ठीक है. Is there any need to for me to do? This is the No, third ma'am. part. No, ma'am. This No, is the ma'am. first part, and second part on the No. similar basis, on the similar steps, just like your third part, right? Okay, ma'am. Your समीक्षा अब तो clear हो गया होगा सब कुछ. चलिए, I'm coming to the next question. Still, if there is any confusion to anyone, तो ये जो बोलने वाले हैं इनकी लाइन में से बाहर निकल के बता देना कि मैम यहाँ पे प्रॉब्लम है या क्वेश्चन दोबारा एक्सप्लेन कर दो. कर दो रेज. Yes, Okay. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Because the class is for all, not for 3 or 4 students. मैम एक बार ये बता दो मैम कौन कौन सी थ्योरम नहीं आएंगी. कौन कौन सी थ्योरम नहीं आएंगी, अंश बता दो भाई. सारी आएंगी, सारी करनी है. सारी मैम सारी करियो. कर रहे हैं मैम. बेटा इसमें आपकी एरिया थ्योरम नहीं आनी है, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम नहीं आनी है. ठीक है, बाकी उनके आपकी करवाओगे applications सारी, आएंगी. मैम. उनकी BPT applications आएंगी. बीपीटी आएगी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी आएगी और पाइथागोरस थ्योरम आएगी. ठीक है. मैम फिर आप 6.4 नहीं करवाओगे? 6 पॉइंट बेटा सिर्फ Applications तो थ्योरम नहीं आएंगी. आनी. Only the Applications theorem is आएंगी. not coming. Exercise will come. अच्छा मैम. मैम उसका मतलब कॉन्सेप्ट में मैम एक्सरसाइज पे क्वेश्चंस आएंगे? Yes. Exercise we will do. Only the theorem will not be done. कि ये कैसे आई ये theorem. ठीक है, उसका रिजल्ट यूज ma'am. करते हुए सारे करने हैं. Now 11th question. In the given figure, E is a point on the side BC. Produced, CB produced. You are given a triangle ABC and you have extended the side CB. CB बोला है तो ये इस डायरेक्शन में एक्सटेंड होगी. And they are saying there is a point E on the side produced of an isosceles triangle ABC with AB is equal to AC. इसमें AB और AC ये दोनों equal हैं. If AD is perpendicular to BC, A से perpendicular BC के ऊपर, this is point D. And EF is perpendicular on AC. E से AC के ऊपर perpendicular. So from this point we have to draw the perpendicular on this line. ठीक है. Now you have to show that triangle ABC and PQR, they are similar. Triangle ABC similar triangle मैम PQR. ए की कांग्रेस ए की उससे हो जाएगा मैम मैम ये. ABD और ECF मैम दिखाना 90 है डिग्री मैम, का ABD है, मैम, AC का opposite ABD angle तो हो गया. angle opposite to equal side of triangle are equal. सबने बिल्कुल पूरी you all are मैम enjoying. ABC नहीं. अब कोई नहीं बोलेगा. ठीक है, अब जिसको बोलूंगी वही बोलेगा. चलो छाया आप बोलो. कहाँ गई छाया, गुम हो गई भाई. छाया बोलो. बोलो, इतनी देर में तो सारे बोल देंगे, क्वेश्चन हो जाएगा. हाँ जी आयुषी आप बोलो बेटा. आयुषी कमाल है. Yes, ma'am. यस बोलिए बेटा. हाउ विल वी प्रूव द सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड पीक्यूआर? Ma'am, PQR तो इसमें triangle नहीं है. कहाँ से आ गया? सॉरी, दिस इज ए बी डी एंड ई सी एफ. Yes, we have to prove the similarity of these two triangles. बता दो. Ma'am एक 90 डिग्री एंगल हो जाएगा.
विच एंगल बताते जाओ। मैम ये एंगल डी triangle. एंड एंगल एफ। Angle D is equal to angle F. They are 90 degree. What else? You are also given that this is an isosceles triangle, so AB is equal to AC. यहाँ से कुछ अगर आप बता पाए तो AD is perpendicular to BC and EF is perpendicular to AC. हाँ जी, इसको हम बाद में लिखेंगे। हाँ जी, कुछ मिला? अर्पित बोलो। हाँ जी शौर्य बोलिए। यस मैम। बोलो कैसे करोगे? मैम We ए बी have- एंड ए सी इक्वल है तो मैम एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड यानी बी और सी भी इक्वल होंगे। Yes, Angle BC. AB is equal to AC. That implies angle C is equal to angle B. Right? What is the reason? यहाँ पे आप लिख देंगे. The reason is If two sides are equal, then their angles are equal. then their opposite angles Oppose- they will also be equal. So we have Equal. C is equal to B. C is the angle of triangle this one ECF and B is ECF. the angle of triangle ABD. A B ठीक है, तो D. एक आपका ये एंगल इक्वल हो गया और एक एंगल आपका D एंड F दे आर इक्वल बिकॉज दे बोथ आर 90 डिग्री। इस ट्राइंगल का D, इस ट्राइंगल का F, ये आपके इक्वल हो गए। अगर आप C लिख रहे हैं तो इधर F लिखेंगे इज इक्वल टू एंगल D 90 डिग्री ईच, राइट? सो वी कैन से दैट ट्राइंगल ABD सिमिलर ट्राइंगल ECF, ठीक है, बाय AA Angle. similarity. Okay, chaliye, question is done. Now coming to the next question, clear to you all? Next Ishita will tell. Chaliye, next question is the sides AB and BC and median AD of triangle ABC are proportional to the two sides and one median of another triangle PQQR and PM. So you are given two triangles ABC and PQR. ABC, PQR. This is the median AD and PM. ठीक है, you are given that AD and BC and median of the triangle are respectively proportional to the sides PQ, QR and median PM, and we have to prove the triangles to be similar. AB, BC and median AD, ठीक है, ये sides हैं और ये proportional किसके हैं? These are proportional to the sides PQ, QR and PM. PQ, QR and PM. So their ratios are equal. Proportional है means their ratios are equal, and we have to prove that the triangle ABC similar triangle PQR. ठीक है, करो proof. कैसे करें? मैं बताऊं? मैम देखो, सबसे पहले तो हम स्टेटमेंट Can लिखेंगे। write BD is equal to B. Ma'am, AB upon PQ equals to में BC equals to अर्पित, एक QR. मिनट रुक जाओ बेटा, एक मिनट रुक जाओ। इशिता बोलो। Ma'am, we can write BC is equal to twice of BD and QR is equal to twice of QM. यस, देखिए आपके पास ये गिवन है, इससे हमने इन्हीं सब से हमने पहुंचना है तीनों ट्राइंगल्स की साइड्स तक। आपके Yes, पास ma'am. है, क्या कह रहे हो? BC को क्या लिख दूं? BC is equal to twice of BD ओके, and QR is equal to twice of QM. QR is equal to twice of QM. ओके,
देन टू कट जाएगा दोनों में से, तो BD अपॉन में QM आ जाएगा। हाँ जी, BC अपॉन QR इज इक्वल टू BD अपॉन QM। Then we have given that AB upon PQ and AD upon PM. Then all And- sides are equal by SSS. यस, बिल्कुल ठीक है बेटा। आपके पास ये 3 गिवन है, AB, PQ, BC, QR और AD और PM गिवन है। दैट मीन्स मुझे तीनों साइड्स अगर मैं लेना चाहूं तो AD, ये 3 साइड से ये वाला पार्ट कवर हो रहा है मेरा, ठीक है। इधर से भी ये इसके प्रोपोर्शनल, इसके साथ आपने ये पेयर लिया, इसके साथ ये पेयर लिया, दैट मीन्स जो कवर्ड एरिया है दैट इज दिस वन, ठीक है। तो सबसे पहले हम इन 2 ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी प्रूव करेंगे। इन 2 ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी होते ही मेरे पास ये एंगल इस एंगल के इक्वल आ जाएगा बाय CPST, ठीक है। और अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल आ गए देन बाय यूजिंग दीज टू, that AB upon PQ is equal to BC upon QR and angle B is equal to angle Q, we can say that the triangles are similar by side angle side, ठीक है। तो Side. सबसे Ma'am. पहले हम, हाँ जी बोलो। मैम जो मीडियंस होते हैं वो ट्रायंगल के पार्ट नहीं होते ना? मीडियंस आर नॉट, नो। ट्राइंगल की अगर हम बात करेंगे ना तो उसके हम 6 ही पार्ट्स काउंट करेंगे, 3 एंगल्स और 3 साइड्स, ठीक है। चलिए लिखोगे इसलिए कैसे? जब भी हम कोंग्रुएंसी प्रूव करते हैं हम मीडियंस को नहीं लेते हैं। बिल्कुल 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 राइट। as BC is equal to double of BD and QR is equal to double of QM, that implies BC upon QR is equal to BD upon QM, right? So AB upon PQ is equal to BD upon QM is equal to AD upon PM using given result नहीं कह सकते, using given क्या लिखेंगे, statement, ठीक है। That implies, now because all the 3 sides are proportional, that means triangle ABD similar triangle PQM by SSS, and if they are similar so we can say that angle B is equal to angle Q. अब आप आ जाओ अपने ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी पे जो आपने प्रूव करनी है। Now you will write in triangle ABC and triangle PQR, AB upon PQ is equal to AD upon is PM. equals to BC upon BC Q. upon QR. In triangle ABC and triangle PQR, AB upon PQ is equal to BC upon QR and angle B is equal to angle Q. That implies the triangles are similar by SAS. SAS. ठीक है, दिस वॉज योर क्वेश्चन। इसी का एक और क्वेश्चन भी आएगा जहां पर अभी तो आपको ये 2 साइड्स और ये 2 साइड्स थी ना इक्वल गिवन, एक में आएगा कि ये वाली दोनों साइड्स और ये मीडियन ये आपस में प्रोपोर्शनल होंगी, नीचे वाली नहीं होगी। उस क्वेश्चन में हमने थोड़ा और एक्सटेंड करके कंस्ट्रक्शन करके वो तब करना पड़ेगा। चलिए, आई थिंक वन मोर क्वेश्चन कैन बी डन इन द टाइम remaining. So next is your question number, कौन से पे पहुंचे हो? 13. 13th question. Your 13th question is D is a point on the side BC of triangle ABC such that 2 angles are given equal. B, C and D is a point given here such that angle ADC is equal to angle BAC. ADC, this angle 1 और ये पूरा angle 2. These 2 angles are given equal. We have to show that CA square is equal to CB into CD.
मैम एडीसी और एबीसी को सिमिलर प्रूफ कर देंगे मैम। 1 और ठीक है। 2 के इक्वल है और सी एंगल कॉमन है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैम एंगल आपने जो एंगल के प्रूव करना, से मैम दोनों सिमिलर हो जाएंगे मैम। इसको मैं लिख रही हूँ CA इंटू CA इज इक्वल टू CB इंटू CD। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज को इधर ले जाओ, यहाँ से एक चीज को इधर ले आओ, राइट। तो ये हो गया आपका CA मैम बीसी को नीचे ले आओ, अपॉन सीए को। CB इज इक्वल टू CD अपॉन CA। ठीक है, यहाँ से हमें क्लियर हो जाएगा कि हमें कौन सी दो ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी लेनी है। CA अपॉन CB, CA अपॉन CB, अंदर वाली ट्राइंगल का CA, बाहर वाली ट्राइंगल का CB। ठीक है, फिर अंदर वाली ट्राइंगल का CD और बाहर वाली हम ट्राइंगल का लेंगे CA। So we will have to take triangles ADC and BAC। in triangle ADC and triangle BAC. Angle C is equal to angle C. This is common. कॉमन एंगल। And जब आपने ये DAC बोला है, पहले कौन सा बोला था आपने? DAC। ठीक है, तो DAC का कौन सा एंगल DAC आपको लेना पड़ेगा? DAC का एंगल 1 is equal to angle 2 of angle triangle Given. BAC. This is given. गिवन। Now we can say that triangle, क्या लिखूं? DAC ही लिख दिया मैंने। This is similar to which triangle? DAC लिया है, इसके सामने अब क्या आएगा? D किसके इक्वल है? A के। A के। तो जहां आपका D आ रहा है वहां पर आप A लिखेंगे। C के इक्वल है, तो C के सामने C लिख देते हैं। और थर्ड आपका क्या रह गया? ABC ABC। ठीक है, बाय एंगल A एंगल सिमिलैरिटी। ठीक है, AA सिमिलैरिटी। और अगर ये सिमिलर हो गई सो वी कैन राइट दैट CA अपॉन CB इज इक्वल टू CD अपॉन CA। ठीक है, और फिर इसको क्रॉस करके लिख दो आप, CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD एंड हेंस प्रूव्ड। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। यस मैम। ठीक है, करना है और हम अगला भी हो चुका। हो तो जाएगा, छोटा सा ही है। नहीं है करवा थोड़ा दो सा, मैम। इट इज टाइम कंज्यूमिंग। थोड़ा सा 15th क्वेश्चन कर लो, चलो जल्दी से। थोड़ा सा वो करने वाला आ गया, थ्योरम से हट के हो जाएगा। सो 15th क्वेश्चन वी आर डूइंग एंड मैम उसमें 14th मैम वर्टिकल मैम पोल। उसमें सिंपल हो जाएगा, वो भी सिंपल हाँ। है, जो वो बनने हैं पोल। हाँ जी, a vertical pole of length 6 मीटर कास्ट है, शेडो 4 मीटर लॉन्ग। एक 6 मीटर का है, उसकी शेडो 4 मीटर की है। एंड ऑन द ग्राउंड एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट है, शेडो 28 मीटर लॉन्ग। एक टावर है जिसकी शेडो 28 मीटर है। ठीक है, और ये आपके दो ट्राइंगल्स हो गए एंड राइट ट्राइंगल्स। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। यहाँ से हमें h फाइंड आउट करनी है। पहले तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या सिमिलर होंगे? बनना है मैम ये हैं? यस मैम मैम, एक ही ट्रायंगल में बनना है मैम ये। क्यों, किसने कहा? क्योंकि एक तो मैम एक एंगल triangle सेम बन हो नहीं जाएंगे सकते 90 90 के। उसके बाद ये एंगुलर एलिवेशन ऑफ सन से हाँ, जो तो ये अलग क्यों नहीं बना सकते? अलग क्यों नहीं बना सकते? एक बिल्डिंग सोनीपत में है, एक ये टावर पानीपत में। इकट्ठे बना सकते हैं ना? हाँ, बना टाइम भी सकते बना हो, है बना सकते एट द हो, बना सेम सकते टाइम। हो। हाँ, क्योंकि हमारा एंगल यहाँ पर सेम रहेगा बिकॉज एंगल ऑफ सन। जब एक टाइम पे एंगल जो सन का है वो हर ऑब्जेक्ट के लिए सेम ही रहता है। सो दिस एंगल विल बी सेम। ठीक है, angle 1 will be equal to angle 2. This is angle of sun and this is 90-degree angle in both the cases. So the two triangles are similar, and if they are similar their sides will be प्रोपोर्शनल। proportional है तो क्या मैम आपने 1:2 क्यों लिखा 6/4 मैम? is equal to h/2 हाँ जी? 28। 6/4 is equal to मैम आपने h/2 1:2 क्यों लिखा मैम? angle of sun, एंगल ऑफ सन 42 मीटर। क्योंकि जिस एंगल पे सन की आपकी शेडो पड़ रही है ना वो हर ऑब्जेक्ट के। हाँ जी मैम आप बोलो मैम, क्लियर नहीं थी पहले वॉइस। एक मिनट। आई एम सेइंग कि जो सन का एंगल है वो हर ऑब्जेक्ट के लिए एक पर्टिकुलर टाइम पे सेम रहता है, हर ऑब्जेक्ट पे सेम एंगल पे ही फॉल कर रहा है वो। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर अगर सन है तो जो एंगल इसका यहाँ बनेगा इसकी शेडो का, ये है इसकी शेडो सन के अकॉर्डिंग बनेगी ना।
अगर सन जितना ऊपर आता जाएगा शेडो उतनी छोटी होती जाएगी. So angle of sun छोटी is होती same for जाएगी. both the Yes. objects. So that is why we are saying that angle 1 is equal to angle 2 because they are angle of sun. ठीक है. And angle B is equal to angle Each na- Q. Q, 90 degrees. each 90. So we can say ABC similar triangle PQR. If they are similar, so AB upon PQ is equal to BC upon QR. That is 6 upon H is equal to 4 upon 20. 4 upon 28. फटाफट से H की वैल्यू बताओ. मैम 42. 42. Yes, H 42. will come out to be 42 meter. That means the height of the shadow will be 42 meter. 42. Let we end the class here. Happy Navratri. Bye, ma'am.